اور یہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ وہ اپنی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت کے مطابق فتویٰ دیں گے۔ مسجد اموی کے شرقی مینار سے نیچے اتریں گے، آسمان سے نیچے اتریں گے، دو فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوگا، تازہ وضو کے آثار ان کے بدن سے ہویدہ ہوں گے اور قطرے ٹپک رہے ہوں گے پانی کے زلفوں سے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، لوگ صفے باندھ کے انتظار میں ہوں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ کہا جائے گا کہ آپ مصلی پہ آ جائیں، لیکن وہ حضرت امام مہدی سے کہیں گے آپ مصلی پہ آئیں، پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کہا، کروڑوں سلام ان پہ، فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ تو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر حضور کے دین کے لیے میدان عمل میں نکلیں گے۔ اس وقت امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی۔ احادیث آخر الزماں پڑھیے، ایک گروہ کٹ چکا ہوگا، شہید ہو چکا ہوگا، ایک گروہ فرار کا رستہ اختیار کر لے گا، منطقیں تراش لے گا، فلسفے بھگا رہا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ لڑنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، اتنے اسلحے، اتنے آلات حرب و ضرب، اتنی جدید ٹیکنالوجی ہمارے بس کا روگ نہیں مقابلہ کرنا، لہذا عافیت قدے میں بیٹھ جائیں گے۔ یہ دوسرا گروہ ہوگا۔ تیسرا گروہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اقصی کے دروازوں پر حق کے لیے لڑ رہا ہوگا۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے فارم ہاؤسوں میں نہیں آئیں گے، ہماری مارکیٹوں میں نہیں آئیں گے، امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ان کو آ کے کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ یا تو میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ سارے جو ہیں وہ آغوش موت میں چلے جائیں گے اور تمہیں فتح ہو جاتی ہے، اور یا پھر ہم ان کے ساتھ لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس سے دجال یوں پگھلے گا جیسے نمک میں پانی پگھلتا ہے، تو وہ سب کہیں گے ہم نے تو لڑنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے چلو پھر، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ مسلمانوں کو وہ قوت دے گا۔ اور آج جو دلیر بنے ہوئے ہیں، کیونکہ 57 اسلامی ملکوں کے حکمران بھیگی ہوئی بلیاں ہیں، اس لیے وہ شیر بنے ہوئے، اور آج وہ مسلم خواتین پر شراب پھینک رہے ہیں۔ چند اسرائیلی نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں علاقے میں چلو، غزہ کے فلاں علاقے کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں۔ یہ امت کا، یہ آج کا درد ہے، لیکن ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے حضور کے فرامین کو پڑھ کے کہ یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپ کے پناہ لینا چاہیں گے تو مخبر صادق آمینہ کے لال نے فرمایا وہ پتھر آواز دے کے مسلم مجاہد کو کہے گا ادھر آ، یہ ظالم میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کوئی درخت بھی ان کو پناہ نہیں دے گا سوائے الغرقت نامی ایک درخت کے، جس کے بارے میں وہ جھاڑی ہے، حضور فرمایا شجرۃ الیہود، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ صرف پناہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی ان کو پناہ بھی نہیں دے گا۔ اور سنو سنو، تمہیں ٹھنڈ پڑنی چاہیے، ہمارا دل سلگ رہا ہے اس وقت امت کے حالات کو دیکھ کے، لیکن خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، اور یہ حضور کا فرمان اور صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پتھر اور گارے سے اور اینٹ اور جو ہے وہ مٹی سے بنا ہوا کوئی گھر، اون اور چمڑے کا بنا ہوا کوئی خیمہ پھر ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ وہ شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، کائنات کی ایک ایک چھت پہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا جھول رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے وعدہ کیا کہ دین اسلام کو میں غالب کر کے رہوں گا، رسول کو بھیجا اس لیے، اور وہ زمانہ وہ وقت دیکھے گا 40 سال تک خلافت علی منہاج النبوۃ قائم رہے گی، حتیٰ کہ بکری گھاٹ کے اوپر پانی پی رہی ہوگی تو شیر آئے گا تو ایک کونے میں پانی پی کے چلا جائے گا، اس کو ہمت نہیں ہوگی کہ بکری کو آنکھ اٹھا کے دیکھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ بیٹھا ہوا ہے۔ 40 سال تک یمن قائم رہے گا، پوری دنیا کے اوپر جھنڈے میرے حضور کے جھولتے رہے، اور یہ وقت آنا ہے۔ میں نے حضرات میں اپنے بچوں کو بتا کے جانا ہے دجال کے بارے میں، صحابہ دجال کے بارے میں اپنے بچوں کو یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے دجال کے بارے میں بتایا، اور تھوڑے فاصلے پر حضور کا ایک جھول تھا اور حضور بیان کر رہے تھے، اور اس طرح حضور نے کہا کہ بس وہ بہت جلد آنے والا ہے، تو ہمیں لگا کہ اس جھول کے پیچھے ہوگا کہیں ابھی نکل جائے گا۔ اس قدر صحابہ کو بتایا کہ بہت جلد دجال ضرور پذیر ہونے والا ہے، اور آج تک دجال کی فکری پوری طرح سے محو محفوظ ہے، اور گلی گلی دجال اپنی تمام توانائی کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے وہ کیپچر کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم نے اپنی نسل کو بتایا تو آنے والی نسل ہماری دجال کے قتل ہوگی، اگر اس کے ساتھ مسافر
मरे हुए 100 साल से ज्यादा अरसा बीत गया है और उनके मानने वाले आज भी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं। एक कादियान का दज्जाल मुसलमा पंजाब मिर्जा कादियानी और दूसरा बहाउल्ला जो ईरान में मुद्दई नबूवत था, उसके मानने वाले भी पूरी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं और इस मुसलमा पंजाब के मानने वाले भी पूरी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं। जबकि माजी की सदियों की तारीख ये है, गुज़श्ता 13 सदियों की तारीख ये है कि जिसने नबूवत का दावा किया, जब वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा, उसके झूठे मानने वाले भी अपने अंजाम को पहुंच गए और खत्म हो गए। लेकिन इन दो लोगों के मानने वाले आज भी दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, तो ये एक सवालिया निशान है और इसको गौर व तदब्बर के साथ हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो साहिबो, आप पूरी तवज्जो के साथ इस मसले पर गौर व फिक्र कीजिए कि ऐसा क्यों है। जब फिक्र को महमीज देंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बाकी लोग जो खड़े हुए वो आज खुद खड़े हुए थे और जब वो अपने मुंतकी अंजाम को पहुंचे, उनके मानने वाले भी खत्म हो गए। लेकिन ये जो दो लोग थे जिन्होंने नबूवत का दावा किया, ये खुद नहीं खड़े हुए थे, इनको खड़ा किया गया था। जब नौ आबादियाती नज़्म सुकड़ने लगा था, तो अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए आलमी दसीसाकारों ने मुसलमानों को तकसीम करने के लिए और मुसलमानों से जज्बा जिहाद खत्म करने के लिए और हज की मरकजियत को तोड़ने के लिए इन दो लोगों को खड़ा किया था। इसको टास्क दिया जिहाद खत्म करने का मिर्जा कादियानी को, और बहाउल्ला को जो टास्क दिया वो था हज के इज्तिमा को मुतासर करने का। और उसने एक मॉडल तैयार कर लिया, जगह जगह तैयार करके रखवाए, इतनी दूर हज करने के लिए जाते यही घूमो। और ये खुद कहता है कि मैंने जिहाद की मुमानियात पर, तर्क पर इतना लिखा है कि अगर इसको जमा करना मुमकिन हो तो 50 अलमारियां किताबों से, पंफलेटों से भर जाएं जो मैंने जिहाद के खिलाफ लिखा है और अतराफ व कनाफ आलम में फैलाया है। तो इसको टास्क दिया गया था कि मुसलमान के सीने से जिहाद को खत्म किया जाए। चूंकि अंग्रेज ने हुकूमत छीनी थी मुसलमानों से। हिंदू तो पहले भी गुलाम थे, अब वो इनके गुलाम हो गए। उन्हें हिंदुओं से डर नहीं था, उन्हें डर था मुसलमानों से। फरूग आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामल न बन जाए। इसलिए वो कुव्वत जिसे जिहाद कहते हैं, उसको खत्म करने के लिए मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को खड़ा किया गया। और उसकी जितनी भी तहरीरात हैं आप पढ़ के देखें तो उसने जिहाद के खिलाफ बात की है कि ये नहीं होना चाहिए,
जमाना है, जिहाद का जमाना नहीं है। अगरचे उम्मत मुस्लिमा ने उसको मुस्तरद कर दिया और वो बदतरीन मौत मर गया, लेकिन चूंकि जिन्होंने खड़ा किया था वो तो आज भी इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, लिहाजा उनके मानने वाले आज भी मौजूद है। उस दौर के अशराफिया ने माना था, क्योंकि ताजे बरतानिया के जेरे साया ये पौधा काश्त किया गया था और उन लोगों को इसके साए में लाके बिठाया गया था, तो उस दौर के अशराफिया ने माना था और उसको अपना माज़अल्लाह पैगंबर कहा था। और आज भी मगरब धड़ाधड़ उनको वीजे देता है, जबकि आज उन ममालिक का वीजा लेना कारेदार है, लेकिन उनको एक सेकंड में वीजा मिल जाता है, और वो इसलिए कि उनके सरपरस्त जो है वो उनको जो है वो रास्ता देते हैं और उनको हिफाजतों का हिसार देते हैं और उनको तकरीम देते हैं। इसलिए आज भी पाकिस्तान के अंदर एक साल में मुहतात अंदाजे के मुताबिक 10,000 लोग एक साल में बैरूने मुल्क जाने के लिए अपने आप को मिर्जाई लिख रहे हैं। और मिर्जाई लिखने का मतलब मिर्जाई हो जाना है। अगर कोई शख्स कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ऊपर ऊपर से लिख रहा हूं, शरीयत के हकाम जाहिर पे होते हैं, वो मिर्जाई हो जाता है। और हमारे करीब एक वाकया हुआ कि एक शख्स ने बैरूने मुल्क जाने के लिए कागज भरे और उसके ऊपर मिर्जाई लिखा, लेकिन अभी जा नहीं सका था। वो बदबख्त की मौत की घाट उतर गया और अल्लाह की गिरफ्त में आ गया। तो उसके खानदान वालों ने कहा कि चूंकि ये तो एक तरीका था बाहर जाने का, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में मुसलमानों के एहतजाज की वजह से उसको उखाड़ करके मुसलमानों के कब्रिस्तान से निकाला। तो ये बात जहन में रखिएगा कि ये खुद काश्ता पौधा नहीं है, बल्कि ये यहूदियत का काश्त किया हुआ पौधा है। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मिर्जाइयत यहूदियत का चरबा है, और किसी ने कहा था कि ये इस्लाम के भी दुश्मन हैं और पाकिस्तान के भी दुश्मन, और इन्होंने हमेशा इस्लाम को नुकसान पहुंचाया और इन्होंने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। लेकिन दुनिया की तारीख का ये अनोखा बब है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इनको कानूनन पाकिस्तान के आईन और दस्तूर के मुताबिक काफिर डिक्लेयर किया गया। लिहाजा इन्होंने उसको माना नहीं, तस्लीम नहीं किया और दर बदरी की ठोकरें खा रहे हैं और जलील और रुस्वा हो रहे हैं। लेकिन ये कानून बाकी रहेगा। आए दिन छेड़छाड़ की जाती है और ये कोशिश की जाती है और लोगों के दिल में इनका जो है वो इनको मजलूम बना के पेश किया जाता है कि ये भी तो इस मुल्क के बासी हैं, इनको भी हक होना चाहिए और ये हुकूमत फैसला वापस ले ले किसी तरह से, या उसके अंदर कोई तरमीम कर ली जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि आसमान तो फट सकता है, जमीन के टुकड़े तो हो सकते हैं, चांद बेनूर हो सकता है, सूरज बेनूर हो सकता है, लेकिन मिर्जाई कल भी काफिर थे, मिर्जाई आज भी काफिर हैं और मिर्जाई कल भी काफिर रहे। मिर्जाई कभी भी जो है वो इस दायरे से नहीं निकल सकते, क्योंकि जो हुजूर के खत्म नबूवत का मुनकर है वो काफिर है। दूसरी बात आपकी तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह आपके जज्बों को सलामत रखे, लेकिन मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप इस मसले को सुनने की कोशिश करें। नारों का ज़ौक़ आखिर में, बाद में या इससे पहले भी मेरा ख्याल आप पूरा कर चुके होंगे।
बस मेरी गुफ्तगू की तरफ आपकी तवज्जो रहे तो ये जिहाद के खिलाफ एक अमली तहरीक थी और इसकी सरपरस्ती उन लोगों ने की जिनको जिहाद से खतरा था, और ये वही लोग थे जिन्होंने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी। पाकिस्तान बनने के बाद भी इन्होंने पाकिस्तान को कबूल नहीं किया। आज भी रबवे के अंदर जो कब्रें हैं वहां जो लोग इनके दफन होते हैं उनको अमानतन दफन किया जाता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, इनके अकायद में ये शामिल है, और हम इन लाशों को उठा के कादियान में जाके दफन करेंगे। जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना तो पूरी दुनिया के ऊपर चरागम किया गया, लेकिन रबवे में सोग मनाया गया। और जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, पाकिस्तान जब टूटा और बांग्लादेश और पाकिस्तान दो अलग हिस्सों में बटा, तो उस वक्त कादियान में चरागम किया गया था और इनका ख्याल था कि पाकिस्तान भी अनकरीब टूट जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूं, मुश्किल वक्त कौमों पे आते हैं, आते रहेंगे, हमारे घरों में भी आते हैं, खानदानों में भी आते हैं, बस्तियों शहरों में भी आते हैं, लेकिन सुन लीजिए, पाकिस्तान खत्म होने के लिए नहीं, कयामत तक कायम रहने के लिए मार्ज़ वजूद में आया। पाकिस्तान मिटने के लिए नहीं बना था। ये सब्ज़ हिलाली परचम कयामत तक फजाओं में झूलता रहेगा, और पाकिस्तान कल भी जिंदाबाद था, पाकिस्तान आज भी जिंदाबाद है, और पाकिस्तान का नाम रोशन रहेगा। मुश्किल वक्त गुजर जाएगा इंशाअल्लाह, और फुरेरे पाकिस्तान की अजमतों के लहराते रहे। तीसरी बात, और मेरी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ चली जाएगी, कि जिहाद के खात्मे के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया था। बहाउल्लाह की जो तहरीक थी वो हज के खात्मे के लिए वो ड्रामा रचाया गया था, और यहां जिहाद के लिए। लेकिन जिहाद खत्म होने वाला नहीं है। मेरे और आपके आका और मौला मुखबिर सादिक, हमारे मां बाप उन पे कुर्बान, आपने कहा था जिहाद कयामत तक जारी रहेगा। थोड़े लोग होंगे लेकिन लड़ते रहेंगे, और फरमाया अक्सा के दरवाजों पर लोग मौजूद रहेंगे जो जिहाद का परचम उठाए रखेंगे। और आज अक्सा के दरवाजों पर लड़ने वाले गज्जा के उन मुजाहिदों को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि पूरी दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया और कुफर इस्राइल के साथ आके खड़ा हो गया। अपने सरकारी जहाज में बैठ के भी बरतानिया का वजीर आजम पहुंच सकता था इस्राइल में, लेकिन उसने तरजीह दी जंगी जहाज में बैठ करके वहां पहुंचने की, और उसने अमलन बताया भी और कहा भी कि मैं इसलिए जंगी जहाज में जा रहा हूं इस्राइल, ताकि उनको मैं बता सकूं कि हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं। लेकिन 56-57 इस्लामी मुल्कों में कोई एक भी नहीं गया जो गज्जा के यतीमों के सर पे हाथ रख सके कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन गज्जा के मुजाहिदों, तुम्हें सलाम हो, तुम्हें आमिना का लाल देख रहा है। सुनो, मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी, इरशाद फरमाया हुजूर ने कि कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएगा, अभी तो दज्जाल का ज़हूर होने वाला है, दज्जाली कुव्वतों का ज़हूर है, लेकिन फरमाया कुर्ब क़यामत में जब दज्जाल आएगा तो मेरे गुलाम उसके मुकाबले में निकलेंगे, हक के रास्ते पे अपना सब कुछ कटवाने के लिए। सुनो, सिहा की रिवायत है, इन्नी ला आरिफु अस्माअहुम, मैं अपने उन गुलामों को नाम बनाम जानता हूं, व अस्मा आबाइहिम, उन गुलामों के मां बाप के नामों को भी जानता हूं। कहानी खत्म नहीं हुई। व अलवाना खुयूलहिम, जिन सवारियों पर चढ़ के जिहाद करेंगे, मैं मोहम्मद उन सवारियों के रंगों को भी जानता। कौन सा गुलाम, किसका बेटा किस रंग की सवारी पे बैठ के जिहाद करेगा, हुजूर फरमाया मैं पहचानता हूं। गज़ा वालों, तुम्हें मुबारक हो, तुझे आमिना के लाल पहचान रहे हैं। जमाना तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें परवाह नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि आमिना के लाल तुम्हें पहचानते भी हैं, तुम्हें जानते भी हैं, और जिन सवारियों पे तुम जिहाद कर रहे हो उन सवारियों के रंगों को भी पहचानते हैं।
और ये जिहाद कभी खत्म नहीं होगा।